اردو حروف یا اردو الفابیٹ 51 ہیں۔ پہلے یہ 36 حروف دیکھیے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، اے۔ اب یہ 15 حروف دیکھیے۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، ر، ڑ، کھ، گھ، ل، مھ، نھ۔ آپ نے دیکھا اردو الفابیٹس میں بنیادی حروف 2-4 ہی ہیں، جیسے بے، جیم، دال، رے، سین، صاد، طے، عین۔ باقی سب نقطوں کا کھیل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اردو میں حروف ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم، سب، ایک، ہیں۔ ملا کر لکھنے کے لیے اردو حروف یا الفابیٹس کو 3 زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک افقی یا ہاریزنٹل حروف، جیسے بے، پے، تے، ٹے، ثے، طے، ظے، فے، کاف، گاف، میم، نون، ہے، ای، اے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے کٹ جاتے ہیں۔ کٹ کر ان کی شکلیں یوں بن جاتی ہیں۔ صرف طے اور ظے جوں کے توں رہتے ہیں۔ کٹ جانے کے بعد یہ دوسرے حروف سے کچھ اس طرح جڑتے ہیں۔ پے، تے، بت، تے، بے، تب، کاف، پے، کب، پے، کاف، پک۔ 2 عمودی یا ورٹیکل حروف، جیسے الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ ان کو آسانی سے لفظ اردو سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام حروف سے ملتے ہیں، مگر یہ خود دوسرے حروف کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے۔ جب الف بے سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بآسانی اس سے مل جاتا ہے، لیکن جب بے الف سے ملنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے دھکا دے کر پرے ہٹا دیتا ہے۔ یہی حال دوسرے کھڑے حروف دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو کا ہے۔ رے کاف سے ملنے جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی سے مل رہا ہے، مگر جب کاف رے سے ملنا چاہتا ہے تو رے اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ واو خے سے ملنے جا رہا ہے اور دیکھیے وہ مل رہا ہے، مگر جب خے واو سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ لفظ فرمان میں دیکھیے کہ رے میم سے اور الف نون سے نہیں مل رہا ہے۔ لفظ ٹماٹر میں الف ٹے سے نہیں مل رہا ہے، جبکہ رے ٹے سے مل گیا ہے۔ کھڑے حروف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ بھی لفظ بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جیسے اردو، دوا، ذرا، رام۔ 3 دائرے والے حروف۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے ان کے دائرے کٹ جاتے ہیں، جیسے کٹ جانے کے بعد یہ حروف کچھ اس طرح بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے حروف سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ جیم، بے، جب، سین، رے، سر، شین، کاف، شک، عین، قاف، لام، عقل، ہے، جیم، حج وغیرہ۔ چنانچہ اتنا یاد رکھیے، افقی دائرے والے حروف سب سے ملتے ہیں اور سب ان سے مل جاتے ہیں، جیسے تو،
तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। अजीज़ दोस्तों, नाजरीन, मैं मुज़फ़्फ़र शहमीरी आओ उर्दू सीखें कि इस आलमी जमात में आप सबका दिली खैर मक़दम करता हूँ। आदमी ने इब्तदा ही से अपने जज्बात और एहसासात के इजहार के लिए कोई ना कोई ज़बान बोलता रहा है, उसको बेहतर से बेहतर बनाता रहा है। दुनिया के कई ममालिक में उर्दू बोली, समझी, पढ़ी और पढ़ाई जाती है। उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश, ETV उर्दू ने उर्दू तालीम व तदरीस की इस रिवायत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए ये प्रोग्राम किया है। उर्दू सीखने का ये एक ज़र्रीन मौका आपके हाथ आया है। इस मौके का बेहतरीन भरपूर इस्तेमाल कीजिए, उर्दू सीखिए और उर्दू की आलमी बरादरी में शामिल हो जाइए। इससे पहले कि हम अपना पहला सबक पढ़ें अलिफ का, क्या बेहतर ना होगा कि हम उर्दू ज़बान और उर्दू रस्म ख़त के ताल्लुक़ से कुछ इब्तदाई बातें जान लें, ताकि हम जिस ज़बान को सीखने जा रहे हैं उसको मुकम्मल तौर पर समझ सकें। यूँ करते हैं कि कुछ सवालात हम आपसे कर लेते हैं। रशिया से आई हुई लिलिया से पूछूंगा, क्या आप लिलिया जानती हैं कि उर्दू ज़बान कहाँ पैदा हुई? उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई, दिल्ली या दिल्ली के अतराफ में पैदा हुई। जी हाँ, आपने लिलिया सही जवाब दिया आपने। मैं ज़रा ये भी जानना चाहूँगा कि उर्दू का ताल्लुक़ दक्कन से क्या है? आप में कौन बताएगा? चलिए मुश्ताक आप बताइए। दक्कन में उर्दू की परवरिश हुई और उर्दू का अवलीन अदब यहीं लिखा गया। बिल्कुल सही कहा आपने कि दक्कन में उर्दू की परवरिश हुई और इसका अवलीन अदब यहाँ लिखा गया। उर्दू के ताल्लुक़ से एक और बात जानना चाहूँगा, कौन बताएगा कि उर्दू कैसी ज़बान है? लक्ष्मी आप बताएंगी। उर्दू एक मीठी ज़बान है। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू लर्न उर्दू बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल एंड अ स्वीट लैंग्वेज। उर्दू वाकई एक मीठी ज़बान है। उर्दू ज़बान बोलने में बहुत ही आसान है, सीखने में भी बहुत ही आसान है। एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज इसे कहा जाता है कि ये है कि ये राबिते की ज़बान है। राबिता कहते हैं कम्युनिकेशन को, तो कम्युनिकेशन की ज़बान है, यानी कि राबिते की ज़बान है। इसमें बोलने वाला अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार बड़ी आसानी के साथ कर सकता है, बल्कि उस ज़बान में अपने ख़यालात का इजहार करते हुए लुत्फ़ भी लेता है, एक तरह से उस ज़बान का मज़ा भी लेता है। क्या उर्दू ज़बान को क्या हम किसी एक मज़हब से जोड़ें? नहीं सर, उर्दू सबकी ज़बान है। आई थिंक इट इज़ सेक्युलर। जी हाँ, उर्दू ज़बान ने और अदब ने हमेशा सेकुलर ख़यालात को फ़रोग़ दिया है। यूँ लगता है कि उर्दू हमेशा कहती है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। उर्दू ने हमेशा यही कहा है कि मोहब्बत की बात करो और मोहब्बत ही से सुलह सफाई करो, यही इसके सेकुलर कैरेक्टर। अब आइए एक और ख़ुसूसियत देखते हैं। उर्दू ज़बान में दुनिया की कई ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। चलिए अपने तलबा से पूछ के देखते हैं कि वो क्या जानते हैं कि उर्दू में कितनी ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। कौन बताएगा कि उर्दू में कितनी ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं? आप बताइए। हाँ सर, 2-3 ज़बानें हैं, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत। तो हमारे तालिब इल्म का ख्याल है कि उर्दू में सिर्फ अरबी, फ़ारसी और संस्कृत के अल्फाज ही शामिल हैं, हालांकि ये बात नहीं है। उर्दू में दुनिया की कई ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। देसी ज़बानों में संस्कृत है, पाली है, ब्रजभाषा है, सिंधी है, पंजाबी है, मराठी है, तेलुगु है और हिंदी के कई अल्फाज हैं जो उर्दू में शामिल हैं। इसी तरीके से
दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों को आप ले लीजिए, चीनी ज़बान है, फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है, अरबी है, फ़ारसी है और तुर्की है, बेलंदेज़ी है। चीनी ज़बान के अल्फाज तक इसमें शामिल है। क्या आपको ये ताज्जुब लगता है कि इसमें चीनी ज़बान का भी कोई लफ्ज़ है? आप बता सकते हैं कि चीनी ज़बान का कोई लफ्ज़ है? बल्कि मैं ये सही कहूँ कि एक ऐसा मशरूब है जिसे हम रोज़ाना पीते हैं, वो चीनी ज़बान का लफ्ज़ है। कोई बता सकता है? पानी। पानी चीनी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है। I'm sorry, पानी चीनी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि पीने की एक और चीज़ है जो हम शब और रोज़ पीते हैं, वो है चाय। किसी भी जिंदा ज़बान की तरक्की के लिए उसके अंदर ये मिजाज होना ज़रूरी है कि वो दूसरी ज़बानों के अल्फाज को ले और उसे अपने अंदर समो ले। अब आइए उर्दू रस्म ख़त के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी मालूमात हासिल कर लें। आप में से कौन मुझे बताएगा कि उर्दू रस्म ख़त किस ज़बान से लिया गया है? आप बताएंगे? अरबी से। अरबी से? जी नहीं साहब, इसमें अरबी के हुरूफ तहजी हैं, लेकिन उर्दू रस्म ख़त फ़ारसी का है। फ़ारसी का रस्म ख़त है और ये नस्तालिख कहलाता है। देखिए तो इसमें अरबी और फ़ारसी के अलावा संस्कृत के कुछ आवाज़ें भी शामिल हैं, जैसे भा, फा, था, ठा, झा, खा, घा वगैरह, और ये आवाज़ें आपको अरबी और फ़ारसी में नहीं मिलती हैं। लिहाजा जब हम उर्दू का रस्म ख़त लिखते हैं तो वो एक खूबसूरत गुलदस्ता बन जाता है और उसका हर लफ्ज़ एक फूल की तरह दिखाई देता है। रंग बिरंगे फूल इस गुलदस्ते में शामिल। नाजरीन, आपने अभी देखा कि उर्दू ज़बान का रस्मुल ख़त कितना खूबसूरत और कितना दिलकश है, और आपने ये भी देखा कि उर्दू ज़बान दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। उर्दू ज़बान का रस्मुल ख़त न सिर्फ दिलकश है, जाज़िब नज़र है, बल्कि सीखने में बहुत आसान भी है। मैं आपको एक मिसाल से समझाऊं। इसका पहला हर्फ देखिए कि कितनी आसानी के साथ लिखा जाता है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, अलीफ। एक जुम्बिश, एक स्ट्रोक में इसे लिखा जा सकता है। न सिर्फ ये है कि इसको सिर्फ एक जुम्बिश में लिखा गया है या लिखा जा सकता है, बल्कि राज की बात तो ये है कि अगर आपने अलिफ लिखना सीख लिया तो बाकी तमाम हरूफ इसी से तोड़कर, जोड़कर, मोड़कर लिखा जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा है कि आप अपने इरादे को मुसम्मम कर लीजिए, अपने इरादे को पक्का कर लीजिए कि उर्दू ज़बान आप सीख कर रहेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारी बातें जहन नशीन कर लीजिए कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले अपनी नोटबुक और क़लम को तैयार रखिए। और आखिरी बात यह है कि आप हमारे असबाक़ को गौर से सुनिएगा, उन्हें नोट कीजिएगा, जहन नशीन कर लीजिएगा और हमारे अगले प्रोग्राम का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। अब आइए हम एक पहला हर्फ उर्दू हरूफ तहजी का सीख लें, यानी ये आपका पहला सबक होगा। और पहला हर्फ जैसा कि हमने बताया है कि वो है अलीफ। उर्दू हरूफ तहजी का पहला हर्फ, जैसा अंग्रेज़ी में ए है, आ है वगैरह, तो ये पहला हर्फ है। इसको आम तौर पर ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है, और किसी भी तरह की गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक लम्हे का वक्त दे रहा हूं, आप लिखिए। मुझे उम्मीद है आप सब ने लिखा होगा, लेकिन यह भी हो सकता है कि किसी ने कोई गलती की हो। एक काम करते हैं, मैं किसी तालिब इल्म को बुलाता हूं, मैं जानना चाहूँगा कि उसने कैसा लिखा है। आप आएंगी? आप आइए और आप बताइए कि आपने कैसा लिखा। ये कुछ नए सीखने वाले लोग गलती कर जाते हैं कि बजाय इसके कि ऊपर से नीचे लिखें,
लेकिन कुछ लोग नीचे से ऊपर लिख जाते हैं। शायद ये सही तरीका ये है कि आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ खींचें। मैं आपको बताऊं कि अलिफ की कोई आवाज़ नहीं होती, अलिफ की कोई आवाज़ नहीं होती। जैसा हम अलिफ लिखते हैं हम ये समझते हैं कि आ का मुतबादिल है या ए का मुतबादिल है, ये सही नहीं है। अलिफ की बजाते खुद कोई आवाज़ नहीं होती। अलिफ की आवाज़ उस वक्त पैदा होती है जब आप उस पर हरकत देते हैं। हरकत किसे कहते हैं? ज़बर, ज़ेर और पेश। जब तक आप वो देंगे नहीं, अलिफ की कोई आवाज़ नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर अब इसकी कोई आवाज़ नहीं है, इसकी कोई आवाज़ नहीं है। इसको आवाज़ मिलती है उस वक्त जब आप इस पर एक छोटा सा निशान ऐसा बनाते हैं, इसे ज़बर कहते हैं। तो ये जब अलिफ के ऊपर दिया जाता है तो ये आवाज़ होगी आ, अलिफ ज़बर आ, और इसके नीचे वही अलामत दी जाती है अलिफ ज़ेर ई। इसी तरीके से अलिफ पर आप ये अलामत बनाते हैं, आवाज़ इसकी होगी अलिफ पेश ऊ। अलिफ पर जब तक ये हरकत नहीं दिए जाते उस वक्त तक उसकी कोई आवाज़ नहीं होती है। अलिफ पर आप ज़बर देंगे तो आ, ज़ेर देंगे तो ई, और पेश देंगे तो ऊ की आवाज़ निकलती है। इसको आप जहन नशीन कर लीजिए, क्योंकि अगले असबाक में हम हर हर्फ पर हरकत देंगे और उन हरकत से उनकी आवाज़ का हम तयन करेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि उर्दू हुरूफ तहज्जी का जो पहला हर्फ है वो सिर्फ एक जुम्बिश या एक स्ट्रोक में लिखा जाता है। इट्स जस्ट एक स्ट्रोक बस। ये बहुत आसान है, और ये आसानी या ये सहूलत और बहुत सारी ज़बानों में नहीं है, क्योंकि जब आप हिंदी में लिखेंगे तो आपको कई स्ट्रोक आपको लगाने पड़ेंगे, कम से कम 3 स्ट्रोक या 3 जुम्बिश आपको करने पड़ेंगे। तेलुगु में जब आप लिखते हैं तो इसको कम से कम 1 स्ट्रोक होता है, लेकिन इसको बहुत घुमाना फिराना होता है। इसी तरीके से आप तमिल में लिखेंगे तो ये बनेगा इस तरह से आ का। और अगर आप अंग्रेज़ी का तो आपको पता ही है, कम से कम 2 जुम्बिश या 2 स्ट्रोक तो आपको करने पड़ते हैं। लेकिन ये ख़ास बात है उर्दू हुरूफ तहज्जी की कि वो सिर्फ एक जुम्बिश में लिखा जाता है या एक स्ट्रोक में लिखा जाता है। अब आइए इस एक अलिफ की वजह से यानी जितने आसानी के साथ आप उर्दू हुरूफ तहज्जी सीख सकते हैं, उसकी मिसाल किसी और ज़बान के साथ बामुश्किल आपको मिल सकेगी, क्योंकि एक अलिफ ही है जो मुख्तलिफ हुरूफ में पाया जाता है। अब आइए एक बात देखते हैं कि इस अलिफ को आप गौर से देखिए। पता नहीं आप लोगों को अलिफ की शक्लें देखकर क्या क्या तसव्वुरात उभरते हैं। मुझे तो कभी ये दिल्ली का कुतुब मीनार मालूम होता है, पेरिस का आईफल टावर, कभी कभी सहरा में खड़ा हुआ एक तन्हा दरख्त, और कभी कभी मैदान जंग में एक तन्हा सिपाही जो बच गया है। मुझे इसकी इनफरादियत बहुत पसंद आती है। वो अकेला है, जैसे कोई जियाला मर्द खड़ा हुआ है। अब आइए अलिफ के ताल्लुक़ से एक आखिरी बात मैं आपको बोलकर अपने सबक को ख़त्म करूँगा, और वो ये है कि अलिफ की आवाज़ एक ही है, अ, इतनी ही है। अगर अलिफ पर हम ज़बर देते हैं तो इसकी आवाज़ बनती है अ। अगर इस आवाज़ को दुगनी करना है तो फिर इस पर हम एक मद इस तरह लगाते हैं, तो ये आवाज़ थोड़ी सी बुलंद हो जाएगी और कहा जाएगा आ। ये पूरा आ बन जाता है। अजीज़ दोस्तों और नाज़रीन, आप अभी उर्दू हुरूफ तहज्जी का पहला हर्फ अलिफ सीख रहे थे। कल इसी वक्त हम उर्दू हुरूफ तहज्जी के 2 और हर्फ बे और पे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उम्मीद है कि कल आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।